Welcome student. Today I am going to teach determinant and it is also very important regarding examination. 4 or 6 mark question will come from this slot. Before this I already explained matrix. So here square matrix, you all know what is a square matrix. A square matrix is what? Whose number of row and number of column where it is same, then the matrix is called a square matrix. Why I am asking about a square matrix? Because determinant is a kind of expression. It has some value, fixed value. But in case of matrix, where I already explained, matrix is an arrangement of numbers that has no fixed value. This is the basic difference. And determinant is what? One square matrix we have to take, and that square matrix, corresponding to each square matrix there is an expression. That expression is treated as determinant. So determinant is an expression, but matrix is a kind of arrangement. Now you see what it is. Determinant of a square matrix. So corresponding to each square matrix, suppose I taken as A, this is A11, A12, A13 up to A1n. Okay, next is A21, A22, A23, this is A2n. Similar way if you move, and here it is AN1, AN2, AN3 up to ANn. Why? Because it is a kind of square matrix. So number of row and number of column is same. Here it is a matrix. So corresponding to each square matrix, there is associated, means each square matrix is associated with an expression corresponding to each square matrix A. There is associated what? An expression is called determinant. Means what? Corresponding to every square matrix there is an expression, number. That expression or number is called determinant. Okay, so determinant is a what? It is a what? Expression. So I written corresponding to each square matrix. This is square matrix. Why? Because it is n by n. There is associated an expression. Clear? There is associated is an expression called determinant, and it is denoted by determinant A, DT, determinant A, like this or like this. This is what? Determinant. So now we when we write determinant of A, when I write this, then we put horizontal line. This is A11, A12, A13, A1n, like this. A21, A22, A23, A2n. In similar way, AN1, AN2, AN3, ANn. Here we cannot write anything. So the difference
Here n by n, so it is a square matrix of order n. This is a determinant. So in determinant we cannot put big bracket or a small bracket. These two symbols are for, this is a small bracket and this is a big bracket. These two symbols we can use in matrix, but in case of determinant we only put this type of symbol. Clear? So this is the symbol used in determinant and these two symbols used in matrix. So sometime in place of determinant some student writing like this. So this is these two symbols we have to use in for matrix and this is for determinant. क्लियर? डिटर्मिनेंट क्या है? तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो किसी एक्सप्रेशन से एसोसिएशन रखता हो, एसोसिएट करता हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट बोलेंगे. लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा इसलिए इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, बट मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होगा. मतलब इट हैज नो वैल्यू, no fixed value because it is a arrangement, but it is an expression, so it has fixed value. This is the basic difference. ठीक है? इसके बाद दूसरा चीज ये समझना है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, यानी वही किसी ना किसी नंबर के या एक्सप्रेशन के साथ एसोसिएटेड होगा. डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है. ऐसा नहीं कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दे दिया और बोला कि फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट, तो गलत हो जाएगा, यानी आपको कंसेप्ट नहीं है इसका मतलब. डिटर्मिनेंट मींस इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, it is also related with square matrix. Clear? So now you write what is the difference between what? Determinant and matrix. First difference, a matrix is an arrangement. Matrix is an arrangement of numbers. Clear? Matrix is an arrangement of numbers, so it has no fixed value. Why? Because it is an arrangement. Why? Determinant is a what? Determinant has a fixed value. This is the basic difference. Matrix, arrangement of numbers, no fixed value, but determinant has a fixed value. So very important thing, what is the difference between determinant and matrix? Matrix is a kind of arrangement, but determinant is a expression. It has fixed value. Now after this, next is number 2, the determinant having n number of rows and n number of columns. Clear? Is known as a determinant of order n. Means it is a square matrix of order n, so the determinant is also denoted by as the order of n.
we cannot show in place of order. Only we can say it is a order of, because it is a square matrix. In a matrix we represent like this, 3 by 3, 2 by 2, but in case of matrix only we put these two horizontal vertical lines. So this is the second thing, second point number 3, and this is very important what I told. Number 3, the determinant of a non-square matrix, clear, is not defined. The determinant of non-square matrix not defined, or you can say matrices. The determinant of non-square matrices not defined. So this is what, if it is a non-square matrix, अगर ये non-square matrix होगा तो इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा. इसलिए अगर कोई पूछ रहा है, जैसे कोई दे दिया फाइंड द डिटर्मिनेंट दिस, so it is never a determinant. Determinant is a square matrix. ये square matrix नहीं है, it is a what, rectangular matrix. So it has no, it does not express in a form of determinant, because determinant is what, corresponding to each square matrix. जितने भी square matrix हैं उसके corresponding एक expression होता है, एक एक्सप्रेशन मिलता है जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं. यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में बता सकते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो एक अरेंजमेंट है, बट वो डिटर्मिनेंट है तो एक्सप्रेशन या नंबर को डिनोट करता है. क्लियर. इसके बाद इसको निकाला कैसे जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. तो हम एक एक करके सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं. सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, because it is square matrix. Determinant of order 1 बोलने का मतलब 1 by 1 matrix. Determinant of order 2 बोलने का मतलब वो 2 by 2 matrix से associated होगा. Determinant of order 3 बोलना मतलब it is associated with 3 by 3 matrix. Now value of a determinant of order 1. क्लियर. अगर ये ऑर्डर 1 है तो कैसे बनेगा, तो द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ 1 by 1 मैट्रिक्स, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ऐसे लिखेंगे. ठीक है. इज डिनोटेड बाय, क्या होगा, डिनोटेड एज या बाय ऐसे. यहां थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा. क्यों? क्योंकि ये मॉड ए नहीं है. अगर ये मॉड ऐसे लिखा हुआ है, मॉड वैल्यू अगर है तो -2 का आंसर सब +2 लिखते हैं, 2 का आंसर 2 लिखते हैं. बट ये अगर डिटर्मिनेंट है तो इसका मतलब ये सिर्फ -2 होगा, ये सिर्फ ऐसे ही +2 होगा. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट में मॉड को नहीं इन्वॉल्व करेंगे. दिस इज नॉट मॉड, दिस इज व्हाट, डिटर्मिनेंट. क्योंकि यहाँ हम डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस करें तो हो सकता है पूछोगे कि सर कैसे जान जाएंगे, तो वो क्लियर रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा. ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह ऐसा सिंबल है. अब जैसे वॉच माने घड़ी भी होता है, पहरा देना भी होता है और देखना भी होता है. तो सिचुएशन के अनुसार वॉच कहाँ पर लगा हुआ है वो देखा जाता है. उसी तरह से यहाँ पर भी मॉड कहाँ है, डिटर्मिनेंट कहाँ है, ये अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन के अनुसार. अगर वो डिटर्मिनेंट है तो ऐसे सॉल्व होगा, अगर वो मैट्रिक्स है तो हम आपको बता दिए ऐसे होगा. ठीक है. इसके बाद ये था डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1. तो इसमें एक एग्जांपल जैसे ले लिया, मान लेते हैं -2 है. ठीक है.
It is a matrix, square matrix of order 1 by 1. Then डिटर्मिनेंट ए बोलो या ऐसे, इसका आंसर आएगा 2 -2। ठीक है, क्लियर। इसके बाद चलते हैं सेकंड वाले ऑर्डर के लिए, वो बहुत ही यूजफुल है, उस पर ध्यान देना है। इसमें है वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब इस पर ध्यान देना है कि वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2x2 मैट्रिक्स वाला डिटर्मिनेंट, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो मान लिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए ए, जिसमें आ गया A11, A12, A21, A22। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है। देन अगर इसका डिटर्मिनेंट लिखा जाए तो इसका आंसर होगा A11 इंटू A12, दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड, A22 माइनस A12 इंटू A21। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिर से देख लेते हैं, अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ABCD। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा ये होगा AD इंटू AD माइनस BC। इस पर ध्यान देना है, हमेशा लेफ्ट कॉर्नर से डाउनवर्ड की तरफ जाएगा ऐसे, और उसके बाद माइनस होगा ये वाला। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है ये थोड़ा हम बता दें, 1 - 2 होगा। प्रोसेस ये है, हमेशा लेफ्ट से टॉप कॉर्नर से इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना। कंफ्यूजन होता है जब हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े रहते हैं, और कभी कभी ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट का यूजेस बहुत जगह है, वेक्टर्स में भी है। ठीक है, तो जब वेक्टर्स में या कहीं पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, सब लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसका कंसेप्ट लगा देता है। थोड़ा बताते हैं उसको, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। होता क्या है, इस पर ध्यान देना है ना यूशी। A1x B1y C1z। ठीक है, ये मान लेते हैं ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, A2x B2y C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं तो पहले जैसे x लेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे x लेंगे ये बंद होगा। B1 C2 हमेशा फॉरवर्ड चलता है, इसको बंद किए तो B1 C2 माइनस C1 B2। और जैसे y लिए हम बोले थे फॉरवर्ड चलता है, फिर यहां नहीं आएंगे। इसमें क्या हुआ, एक बार इधर से इधर लिए और जैसे बंद किए तो फॉरवर्ड आगे जाएंगे, C1 A2 माइनस A1 C2। ठीक है, और जैसे 1 लेंगे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट इसको बंद किए तो फॉरवर्ड, फिर आ गया यहाँ पर A1 B2 माइनस B1 A2। तो इसमें क्या हो रहा था कि एक बार ऐसे ये बंद किए तो एक बार ऐसे, और एक बार फिर ऐसे हुआ, फिर इसको बंद किए तो एक बार फिर इसको बंद किए, तो यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा था, यहां से हो रहा था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में हमेशा लेफ्ट से ऐसे आएगा। ये LHS साइड है, ये RHS साइड है। ठीक है, ये 1 हमेशा 1 में 2 माइनस होगा, 1 में हमेशा 2 माइनस होगा। यानी अगर ये PQRS है तो हमेशा PS माइनस QR होगा।
चाहे कुछ भी हो जाए यही फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर माइनस है यहाँ पर तो भले साइन बदल जाएगा, लेकिन हमेशा पी एस इंटू पी इंटू एस माइनस क्यू इंटू आर ही होगा। इट इज ऑलरेडी डिफाइंड, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। 1/1 के लिए डिफाइंड था, अब ये 2/2 के लिए ये प्रोसेस है। इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो हो सकता है ये ज्यादा क्लियर हो जाए। देखते हैं, दोनों में डिफरेंस भी बता दिए कि जहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वहां का प्रोसेस, यहाँ का प्रोसेस। यहाँ एक कांस्टेंट मेथड है, इसमें हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे। यहाँ पर कभी लेफ्ट टू राइट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट भी हो रहा है। इसीलिए दोनों बताया कि बच्चे कभी इसके जगह पे ये वाला यूज कर देते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना है। अब 2/2 का कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखते हैं क्या है, इसके बाद 3/3 या मोर देन 3 का कैसे सॉल्व करना है वो बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है डिटरमिनेंट 6 - 3 7 - 2। देखिए यहाँ माइनस है तो मेरा प्रोसेस है इतना इंटू इतना, यानी 6 इंटू -2 माइनस फॉर्मूला का। उसके बाद क्या होगा -3 इंटू 7, तो ये आ गया -12, ये माइनस माइनस प्लस 21 इज इक्वल टू 9। ठीक है, नंबर 2 एग्जाम्पल देखते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको इससे इंटू करेंगे, क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस, फिर इससे इसमें क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 एक्स प्लस 1। क्लियर है। चलिए इसको देखिए क्या आएगा, ये आ गया आपका ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू। वाई, बिकॉज ए क्यू माइनस बी क्यू होता है सॉरी ये तो ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस पर देखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आ गया एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बेसिक चीज हमको ये तो एक्सप्रेशन है, ये हर जगह यूजेस हम लोग करते हैं, सॉल्व करने का तरीका हमको पता है, लेकिन मेरा बेसिक पढ़ाने का यह मतलब है कि इसको कैसे सॉल्व किया। हमेशा इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना होना है। ठीक है, चलते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ट। जैसे मान लेते हैं नंबर 3, इफ 3x 7 माइनस 2 4 है, ठीक है, इक्वल टू 8 7 6 4 है। अब बोलता है कोई फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसको फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा, चलिए इसको देखिए, इसमें सेम प्रोसेस 3x इंटू 4 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 8 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 7, कितना आएगा 12x प्लस 14 32 42। दिस इंप्लाइज 12x, कितना हो जाएगा 12x, उसको उधर ले जाइए 32, यानी ये हो गया आपका पहले से -10 माइनस 14। दिस इंप्लाइज 12x माइनस 24, x का वैल्यू -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खाली रियल नंबर से भी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी वैल्यू है, कभी कभी दे देता है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए दे देगा। प्रूफ दैट sin 10 माइनस कॉस 10 sin 80 cos 80, इसको भी बना सकते हैं हम लोग। बोलेगा प्रूफ दैट इज इक्वल टू 1। तो LHS ले लेंगे। व्हाट इज LHS? LHS क्या है, LHS है sin 10 माइनस कॉस 10 डिग्री और sin 80 cos 80, यही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, sin 10 cos 80
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बताए ये इतना इंटू इतना माइनस इतना, तो माइनस पहले से है तो प्लस बन जाएगा। कॉस 10 साइन 80, शायद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्या होगा, साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया साइन 90। कभी कभी क्वेश्चन में सॉल्व करने देता है इंस्टेड ऑफ प्रूफ। प्रूफ दिया तो हमको मालूम है 1 लाना है, लेकिन कभी कभी बोल देगा सॉल्व कीजिए। बहुत बच्चा यहीं तक छोड़ देता है, जिससे हाफ मार्क्स कटने का चांसेस रहेगा। इसलिए इसको पूरा सॉल्व करेंगे। उस टाइम जब ये सॉल्व रहेगा, या तो हमको मालूम है 1 लाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में 1 आ ही रहा है। ठीक है, तो 2/2 1/1 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा हम ये क्लियर कर दिए। अब आते हैं 3 और उससे ज्यादा कैसे, मोर देन 2 3 और मोर। 3 और मोर का कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए थोड़ा सा हमको कुछ टर्म्स के बारे में आइडिया लेना होगा या जानना होगा। जैसे एक माइनर्स होता है, एक कोफैक्टर्स होता है। ठीक है, ऐसे तो जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो डायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन पहले क्या क्या एक्चुअल होता है बिहाइंड द कर्टेन, बहुत सारा चीज है जिसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं बनाते समय, लेकिन थ्योरी है, थोड़ा सा जान लेने से कोई गलत नहीं होगा, बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले माइनर्स के बारे में जानेंगे। माइनर ऑफ aij इन डिटरमिनेंट ए, यानी किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो माइनर है क्या, देखते हैं कि द माइनर ऑफ एन aij एलिमेंट, ठीक है, इन डिटरमिनेंट ए, एलिमेंट इन डिटरमिनेंट ए, किसी भी डिटरमिनेंट ए में aij एलिमेंट के माइनर को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, द माइनर ऑफ aij एलिमेंट इन डिटरमिनेंट ए, ठीक है, इज डिनोटेड बाय, यानी किसी भी एलिमेंट का माइनर किसी डिटरमिनेंट में डिनोट कैसे किया जाता है। तो aij एलिमेंट है तो डिनोटेड बाय mij होगा। अगर ये a12 होता तो ये m12 लिखा जाता, ये 13 रहता तो m13 लिखा जाता। ये क्लियर। तो सबसे पहले mij इज अ व्हाट, माइनर ऑफ विच एलिमेंट, aij एलिमेंट इन डिटरमिनेंट a। क्लियर, हाउ वी कैन ऑब्टेन, ठीक है, कैसे इसको ऑब्टेन किया जाएगा, इट इज obtained by डिलीटिंग, मतलब डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीटिंग ith रो, ठीक है, एंड jth कॉलम। क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या है, किसी भी एलिमेंट का माइनर, किसी भी एलिमेंट मतलब aij एलिमेंट का माइनर क्या है, तो mij इज व्हाट, माइनर ऑफ विच एलिमेंट, aij एलिमेंट। एंड हाउ वी कैन ऑब्टेन, कैसे मिलेगा, बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट का ith रो और jth कॉलम को डिलीट करेंगे, jth कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट के ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमको mij मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि कोई डिटरमिनेंट है 2 3 5 6, दिस इज डिटरमिनेंट। अब इसमें 4 एलिमेंट है, इसका 4 माइनर होगा। तो जैसे हम लिखते हैं m12, तो पता है ये किसका माइनर है, a12 एलिमेंट का माइनर हुआ।
तो A12 एलिमेंट का माइनर, यानी इसको बोलेंगे माइनर ऑफ A12 एलिमेंट। ठीक है, तो A12 एलिमेंट क्या है? 2 है। ठीक है, माइनर ऑफ A12 एलिमेंट इज 2। देन हाउ वी कैन ऑब्टेन M12? बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो। ये 1 2 है ना, ये 1 2 कौन सा हुआ? दिस इज 1 एंड 2, दिस वन इज 1 2। क्लियर? गलत बोल रहे थे हम, ये है 1 2 एलिमेंट। तो डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिए, तो क्या बचा? 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5। मतलब इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट विच वी ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग। अगर 1 2 है तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब अगर मान लो निकालना है M22 या M21, तो M21 इज ए माइनर ऑफ विच एलिमेंट? 21 एलिमेंट। तो इस 21 एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? तो बाय डिलीटिंग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए, क्या आ गया? 3। ठीक है, तो ये आ गया 3 ऐसे। यानी दैट इज ऑल्सो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, अभी 3/3 में करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। पहले तो हम माइनर सिखा रहे हैं, बाद में हम 3/3 का भी बताएंगे अभी तुरंत। ठीक है, तो माइनर क्लियर हो गया। माइनर, किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या है? इज ऑल्सो ए डिटर्मिनेंट विच ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। अगर 1 2 एलिमेंट का पूछेगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। 21 एलिमेंट का पूछेगा तो सेकंड रो और क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको। जैसे 3/3 का लेते हैं। जैसे 2 1 3 1 0 5 -2 6 1, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है। अब इसमें 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए इसके 9 नंबर्स ऑफ माइनर होंगे। जैसे हमको मान लो निकालना है 1 2, यानी ये 1 2 एलिमेंट का माइनर है। तो 1 2 एलिमेंट का माइनर है तो फर्स्ट रो डिलीट सेकेंड कॉलम। ये 1 2 कौन है? ये 1 2 होगा, दिस वन 1 2। इसको 1 1 करते हैं, पहले 1 1 निकालते हैं, उसके बाद 1 2 पे आएंगे। 1 1 एलिमेंट माइनर ऑफ दिस 2, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए, तो कौन सा डिटर्मिनेंट बच गया? 0 5 6 1। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? तो 0 × 1 -5 × 6, 0 -30 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि M23 निकालना है, यानी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, डिलीट हो गया। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, तो बचा क्या? 2 1 -2 6। ध्यान ये रखना है कि अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है तो उसके माइनर का ऑर्डर 2 होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए डिटर्मिनेंट विच वी ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को डिलीट करने से मिलता है। तो 2 1 और -2 6, इसको कैसे बनाएंगे? तो 2 × 6 -2 × 1, ये हो जाएगा 12 -+ 2 14 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 9 नंबर ऑफ माइनर्स ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके बाद कोफैक्टर्स आता है। कोफैक्टर्स ऑफ Aij एलिमेंट या Aij इन एलिमेंट Aij इन डिटर्मिनेंट A। ये है कोफैक्टर ऑफ Aij एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट A। द कोफैक्टर, केवल ये ध्यान देना, जिसको माइनर का आइडिया हो गया, कोफैक्टर भी ऑलमोस्ट सेम है, केवल इसमें साइन का आइडिया लेना है। साइन इसमें कैसे लेते हैं? द कोफैक्टर Cij, ठीक है, द कोफैक्टर Cij ऑफ एन एलिमेंट Aij इन डिटर्मिनेंट A, यानी Aij एलिमेंट अगर
का डिटर्मिनेंट ए में जो कोफैक्टर का नोटेशन होगा वो Cij होगा, यानी Cij इज ए कोफैक्टर ऑफ Aij एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट ए, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट के Aij एलिमेंट के कोफैक्टर को Cij बोला जाएगा। अगर हम कहीं पर लिख रहे हैं C12, इसका मतलब ये किसका कोफैक्टर है, A12 एलिमेंट का कोफैक्टर है। ठीक है, इस पर ध्यान देते हैं। इज डिफाइंड क्या है, एज Cij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j और Mij, यानी इसमें Cij और Mij तो ऑलमोस्ट सेम आ गया। Mij कैसे निकालेंगे, बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। इसमें एडिशनल क्या आ गया, ये अगर इन दोनों का सम, ये जो i प्लस j इवन है तो पॉजिटिव होगा, i प्लस j अगर ऑड है तो नेगेटिव होगा। यानी जब हम कोफैक्टर, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर कोई बोलता है C21 निकालिए, तो C21 मतलब -1 का पावर 2 प्लस 1, -1 का पावर 2 प्लस 1 M21, तो ये तो आ गया माइनस, और M21 कैसे होगा, बाय डिलीटिंग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1361 कितना आया, -1 -6 3 जा 18, कितना आ गया, माइनस प्लस 17। दिस इज द कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को समझना है तो बड़ा अच्छा ये भी मेथड है कि अगर इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा हमेशा प्लस होगा, क्योंकि वहां A11 आता है। हम पहले लिख दे रहे हैं, यहाँ A11 आएगा, यहाँ A12 आएगा, ये A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 32 33। तो ऊपर में सबसे पहले यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ऐसे चारों कॉर्नर जो होते हैं वो प्लस होते हैं। ठीक है, प्लस होते हैं, यानी इस तरह का होता है ये, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। यानी क्यों होता है, तो i प्लस जे के कारण। अगर ऑड ऐड करेंगे ऑड होगा नेगेटिव, ऐड करेंगे इवन होगा पॉजिटिव, तो चारों कॉर्नर पे इवन आ रहा है इसीलिए पॉजिटिव है। ठीक है, इस साइन कन्वर्सन को याद रखना है। इसके बाद आते हैं कि कैसे हम 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट यहां पर हो रहा है कि इट इज ए प्रोडक्ट सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑब्लिक और कॉलम्स। It is a product sum of corresponding elements of a row or a column is called determinant। जैसे इस पर बात करते हैं, है क्या एक्चुअली, थ्योरी अलग है, जब हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो फिर अलग मेथड मतलब लगेगा वही, लेकिन ये सारा बात नहीं बताएंगे, उसमें ये सारी चीज़ों का चर्चा नहीं हो रहा है, कौन को फैक्टर है कौन क्या है, लेकिन अभी हम थोड़ा सिखा रहे हैं इसलिए हम आपको क्लियर करते हैं क्या है ये एक्चुअली। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो डिटर्मिनेंट जो है इट इज ए प्रोडक्ट सम ऑफ ए रो विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, यानी किसी भी एलिमेंट के रो और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट गिव्स द डिटर्मिनेंट। जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, 2 3
1 -1 0 2 1 3 5। जैसे ये मान लेते हैं 1, ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट हम ये लिए। अब इसमें सारे एलिमेंट्स का ये निकाल लेते हैं कोफैक्टर। निकालिए, C11 C12 C13, ये क्या है? तो कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट 1 1 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट, 1 3 एलिमेंट लिख लिए। इसके बाद C21 C22 C23, सेकेंड रो के पूरे कोफैक्टर्स को मैंने लिखा। C31 C32 C33। अभी मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूं, तो मैंने आपको बताया कि यहां पर प्लस होगा क्योंकि 1 + 1 इवन है, यहां पर माइनस होगा 1 + 2 ऑड है, यहां पर क्या होगा प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां पर प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस। जहां इवन होगा वो प्लस होगा, जिस प्लेस में ऑड होगा वो माइनस होगा। अब ये तो -1 to the power i + j का काम था। अब यहाँ पर M11 निकालना होगा, यानी बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए तो आ गया 0 -6, तो 0 -6 -6, ठीक है, क्लियर। इसके बाद 1 2, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 -2, तो 1 -2 आएगा कितना 1, क्लियर हो रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड फर्स्ट रो, इसके बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट किए, दिस इज -1, ठीक है, और -2, क्लियर हुआ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 -2 कितना आया -3, ठीक है। इसमें -6 कैसे आया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो 0 0 -6 आया। इसके बाद 1 3, 1 और 3 को डिलीट कर दिए, कितना आया -3 -0 -3, ठीक है। इसके बाद 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3 -3, हमेशा लेफ्ट टू राइट, 3 -3 0, फिर 2 2, सेकेंड और सेकेंड, या 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 -1 1, फिर क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना हो गया 2 3 जा 6 -3 3, ठीक है। इसके बाद 3 1 ये है 6, 3 2 जा 6 -0 6, फिर क्या होगा 3 2 2 2 जा 4 -1 4 + 1 5, ठीक है। 3 3 0 -3 कितना आएगा +3। अब देखिए यहाँ क्या आएगा -6, यहाँ क्या आएगा +3, प्लस -3। अब क्लियर हो गया सारे, मैंने कोफैक्टर्स को लिख दिया। कोफैक्टर्स निकालने का मेथड भी डिस्कस कर लिए। केवल अगर साइन इंक्लूड नहीं करेंगे तो वही माइनर्स होता है, ठीक है। जैसे कोफैक्टर आ गया, अब हम इस डिटर्मिनेंट को, देयर आर 6 वे, 6 तरीका इसको बनाने का। तो सबसे पहले हम अलोंग R1 चलते हैं, ठीक है। अभी बता रहा है कि सारा मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। मैंने थ्योरी लिखा है कि प्रोडक्ट सम ऑफ द एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का रो के किसी भी, मतलब क्या लिखे हमने, इट इज द प्रोडक्ट सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए रो, मैंने किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लीजिए 2 3 1 और इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम अलोंग R1 लिए, तो कोफैक्टर्स क्या आ गया मेरा, कोफैक्टर्स है मेरा, पहले तो एलिमेंट्स है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, दीज आर व्हाट एलिमेंट्स ऑफ ए रो, फर्स्ट रो। अब इनके कोफैक्टर्स को लिखिए, इनका कोफैक्टर्स है -6, इसका है 3, इसका है -3, ये हुआ R1 का कोफैक्टर्स। अब इनका प्रोडक्ट सम करना है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है
इसको समिंग करना है। कितना आया? -12 + 9 -3, तो ये 15 हुआ। ठीक है, उसमें फिर कितना आएगा? 6। ठीक है, ये आ गया 15 + 9 -6, ये हुआ along R1। अब आते हैं along R2 पे चलते हैं। along R2 मतलब R2 एलिमेंट का यूज करना है, डिटरमिनेंट ए। अब इस एलिमेंट्स को लिखिए, ये -1, इसका एलिमेंट है 0, ये है 2। ठीक है, अब हम इसके कोफैक्टर्स को लिखते हैं। तो -1 का कोफैक्टर क्या है? 0। एक्चुअली -0 लिया नहीं जाता है, 0। उसके बाद 0 का कोफैक्टर क्या है? +1। उसके बाद 2 का कोफैक्टर क्या है? तो -3। अब सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट सम करना है हमको। जब प्रोडक्ट सम करेंगे तो ये होगा 0, ये होगा 0, ये होगा -6, यानी -6 आ गया इसका डिटरमिनेंट। दो मेथड हम कर लिए, एक R1 से, एक R2 से। अब एक आते हैं R3, along R3। तो क्या होगा? पहले लिखिए, सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 1। अब इसके कोफैक्टर्स क्या है? तो +6, उसके बाद क्या है? -5, उसके बाद क्या है? 3। अब इनका प्रोडक्ट सम करते हैं। तो जैसे ही इनका प्रोडक्ट सम करेंगे, क्या आएगा? ये आ गया 6, ये आ गया -15 + 3, यानी ये आ गया फिर -6। यानी इन ऑल द 3 रोज R1, R2, R3 आंसर क्या है? सेम है। यानी हम इस तीनों रो के यूज करके along R1, R2, R3 सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं along कॉलम C1, C2, C3। इसीलिए बोले थे 3 रो और 3 कॉलम, 6 तरीका है। along C1 जब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इतना नहीं लिखेंगे डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए। उस टाइम हम क्या करेंगे बाद में भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको क्लियर करते हैं। C1 लिए तो इसका कोफैक्टर क्या है? सबसे पहले एलिमेंट्स है 2, -1 और 1। अब इसको इसके कोफैक्टर को लिखिए। 2 का कोफैक्टर -6, इसका 0, उसका 6। अब ये जो एलिमेंट्स आया इसका प्रोडक्ट सम करते हैं। तो जैसे इसका प्रोडक्ट -12 और +6 कितना है? -6। आंसर क्या है? -6 आ गया। फिर लेते हैं along C2, along C2। तो जब C2 लेंगे तो फिर डिटरमिनेंट ए। C2 में क्या आएगा? 303, 303। अब इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स क्या है? इसका 3 है, इसका 1 है, इसका -5 है। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स का सम करते हैं। तो आया 9 + 0 -15 -6, हर केस में -6 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद along C3 से इसको बनाते हैं। तो C3 यानी कॉलम थर्ड यूज करेंगे। 1 to 1 एलिमेंट्स क्या है? 1 to 1, ये है इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब इसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर क्या है? -3। इस 2 के लिए कोफैक्टर क्या है? -3। 1 के लिए +3। अब ये जो एलिमेंट आया इसका प्रोडक्ट सम करेंगे तो आया -3 -6 +3, कट गया -6। यानी इन ऑल द 6 वेज, 3 बाई कॉलम 3 बाई रो, आंसर क्या आया? -6 आया। तो इससे पता चलता है कि डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट इज ए प्रोडक्ट सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम टू इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्लियर है? अब इतना लंबा चौड़ा मेथड से तो एग्जाम में बनाएंगे नहीं। एक्चुअली एग्जाम में बनाने के लिए आएगा नहीं, इन बिटवीन क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने। तो कैसे करेंगे उसको बताते हैं। अच्छा, एक चीज और इससे पहले कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, जैसे R1 लिए या R2 लिए या R3 लिए, अगर R1 एलिमेंट ले रहे हैं और इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको डिटरमिनेंट मिल रहा है। लेकिन अगर इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा नोट है, वो ध्यान दें कि अगर ये 2 लिए, ये 3 लिए, ये 1 ले रहे हैं, ठीक है, R1 एलिमेंट्स
एलिमेंट्स इन R1 रो 1, ठीक है। अब इसके अदर को फैक्टर्स R1 को छोड़कर R2 को फैक्टर्स को ले रहे हैं, 0 +1 और -3। अब इसके सम को अगर हम निकालते हैं तो आएगा 0 0 3 -3 0। फिर उसी तरह से इसी एलिमेंट को लिए और इस R3 के कोफैक्टर्स को लेंगे तो आ गया 6, आ गया -5, आ गया +3। इसका सम जब करेंगे तो ये भी आएगा 12 + 3 15 -15 0। यानी इससे ये पता चला कि अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी रो के एलिमेंट्स को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट प्रोडक्ट सम गिव्स डिटरमिनेंट, बट द प्रोडक्ट सम ऑफ ए रो विथ एनी अदर कोफैक्टर्स, यानी कि R1 लिए एलिमेंट्स, R2 या R3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट सम 0 देगा। अगर R3 एलिमेंट ले रहे हैं, R3 एलिमेंट और R3 का ही कोफैक्टर लेंगे, यानी रो 3 का ही कोफैक्टर लेंगे, दैट गिव्स डिटरमिनेंट। लेकिन अगर R3 एलिमेंट्स लिए और R1 या R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से अगर उसका प्रोडक्ट सम निकालेंगे, दैट सम विल बी 0। C1 एलिमेंट लिए, C1 का ही कोफैक्टर्स निकाल करके उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्रोडक्ट सम निकालेंगे, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। बट अगर C1 एलिमेंट ले रहे हैं और C2 या C3 उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट प्रोडक्ट सम विल 0। क्लियर? अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या आएगा, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले इस साइन के बारे में तो आइडिया रखना है, जो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले चारों कॉर्नर प्लस होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं ये भी बता दिए, और बीच में प्लस होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस प्लस, इसके बाद वाला अगर होगा तो माइनस आ जाएगा, पोजीशन के अनुसार साइन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाने का 6 तरीका है, 3 बाई रो और 3 बाई कॉलम। तो जैसे अलोंग R1 चलेंगे, अलोंग R1, ठीक है। तो R1 के अलोंग चलेंगे तो डिटरमिनेंट एक कैसे निकालेंगे, अभी निकालना मैंने बताया था, लेकिन डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसका पोजीशन क्या है, +2 प्लस, और ये 2 +2 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे 2 लिए तो ये डिलीट कर दिए तुरंत, यानी माइनस निकाल रहे हैं, 0 -6, 0 -6 यानी माइनस, ठीक है। क्या किए, 2 लिए पहले, ठीक है, 2 + 2 होगा, ये बंद ये बंद, ये कितना आया, 0 -6। इसके बाद क्या आएगा, अगर R1 ले रहे हैं तो ये 3 आएगा, 3 का पोजीशन क्या, -3, 3 का पोजीशन क्या होगा, माइनस साइन, -3, ये रो ये बंद, रो कॉलम बंद, -1 -1 2, ठीक है। इसके बाद +1 हो जाएगा, जैसे +1 लेंगे ये बंद, -3 -0, देखिए कितना आ रहा है, ये आया -12 प्लस का 9 माइनस का 3, तो ये आ गया -6। अब अलोंग R2 लेते हैं, किसी भी मेथड से बनाएंगे आंसर सेम आएगा। R2 लेंगे, R2 ये वाला हो गया, तो यहाँ पहले से ये एलिमेंट -1 है और इसका पोजीशन माइनस होता है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा तो क्या आएगा, 3 -3, ठीक है, 0 प्लस का 0, अब 0 है तो कुछ भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, लेकिन लिख के बना रहे हैं, ये हो गया 2 -1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस प्लस -2 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये बंद हो गया तो आ गया 6 -3, 6 -3 कितना आया, इसका वैल्यू आ गया 0, उसका भी वैल्यू आ गया 0, उसका आया +3 -6 इज द आंसर। अब अलोंग R3 के अलोंग बनाना हो तो कैसे बनेगा, देखिए, 3 - 3 = 6, 3 - 3 = 9, 9 - 3 = 16, 16 - 3 = 24, 24 - 3 = 26, 26 - 3 = 28, 28 - 3 = 32, 32 - 3 = 36, 36 - 3 = 48, 48 - 3 = 52, 52 - 3 = 53, 53 - 3 = 54, 54 - 3 = 55, 55 - 3 = 56, 56 - 3 = 57, 57 - 3 = 58, 58 - 3 = 59, 59 - 3 = 60, 60 - 3 = 61, 61 - 3 = 62, 62 - 3 = 63, 63 - 3 = 64, 64 - 3 = 65, 65 - 3 = 66, 66 - 3 = 67, 67 - 3 = 68, 68 - 3 = 69, 69 - 3 = 70, 70 - 3 = 71, 71 - 3 = 72, 72
R3 के अलाउ R3 ये है, प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 लेंगे, ये रो ये कॉलम डिलीट, 6 माइनस 1 0, 6 माइनस 0, इसके बाद माइनस 3, ये जा रहा है प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 लिए, फिर माइनस 3 लिए 1, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 हो जाएगा। क्यों प्लस 1 होगा? क्योंकि ये बंद हो गया तो यह आया 4, फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। उसके बाद प्लस 1 लेंगे, इसका क्या ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, 0, ये क्या आएगा माइनस 3 प्लस 3, देखिए क्या आता है, दिस इज व्हाट 6, या 5 माइनस 15 प्लस का 3, यानी कितना है माइनस 6 आ गया। ठीक है, इन ऑल दी 3 रोज आंसर इज सेम। अब एक कॉलम से भी बना के दिखाते हैं, अलोंग C1, मान लेते हैं C1 से ही बनाना है, तो C1 में पहले ऐसे, C1 का मतलब ये हुआ, तो प्लस 2 लेंगे पहले, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, 0 माइनस 6, इसके बाद माइनस 1 है और पोजीशन में भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 ले लिए, ये रो ये कॉलम डिलीट, 3 माइनस 3, ठीक है, इसका मतलब 0, खैर नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे प्लस 1, ये रो ये कॉलम डिलीट, 6 माइनस 0, देखिए कितना आया माइनस 12 प्लस का 0 प्लस का 6 माइनस 6, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम, यानी 6 मेथड है, 3 बाई रो और 3 बाई कॉलम, आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब हमको ये बनाने को बोला जाए तो कोशिश ये करना चाहिए कि जिसमें 0 हो उसी से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन से हम बच जाएंगे। तो मेरा ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने मिला हमको, तो हम C2 या R2 से सॉल्व करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे C2 से सॉल्व करेंगे, अलोंग C2 से जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 0 3 है तो 2 ही ना करना पड़ेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस 3 ले लेंगे पहले। क्यों माइनस 3 लिए? इसका पोजीशन माइनस है, तो माइनस 3 लिए तो रो और कॉलम डिलीट, यानी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया। अब इसको लिखना ही नहीं है, फिर आ गया माइनस 3, फिर क्या करेंगे, रो और कॉलम डिलीट, 4 प्लस 1 5, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 15 माइनस 6 आ गया। इतना आसान है। कब आसान होगा? जब मान लेते हैं किसी में एक 0 है, तब इससे सॉल्व करने से ज्यादा आसान पड़ेगा जिसमें 0 हो। R2 से मैंने यहाँ सॉल्व किया है, या तो मैंने लिख के बताया था, लेकिन अब जान गया कि 0 है तो उसके बारे में बाकी बात करना ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। ठीक है, और भी है क्या कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर कोई भी एक रो में सारे का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, जैसे 4 5 7 2 3 1, अगर ये ऐसा है, इसका सारा का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो क्या करेंगे, पूरा वैल्यू 0 होगा। यानी किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी रो का इंटायर रो या इंटायर कॉलम में सारा का सारा एंट्री 0 होता है, तो होल डिटरमिनेंट बिकम 0। क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करने लिख करके बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने से लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक और ऐसे देखते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में एक्चुअली हम लोग इस डिटरमिनेंट को यूज किए हैं कोनिक सेक्शन में। क्या है? ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो ऑन फॉर सिनेमा, ये एक डिटरमिनेंट है। अभी इसका मतलब पे नहीं जाना है। ठीक है, ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गॉन फॉर सिनेमा, एक्चुअली ये डिटरमिनेंट याद करने का तरीका है इस डिटरमिनेंट को, क्योंकि एक कोनिक सेक्शन में ये था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हम उस पर बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये डिटरमिनेंट ए है, कभी कभी कैपिटल डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है इस डिटरमिनेंट को। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो जैसे ये प्लस है, ये बंद बी सी माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच, जैसे माइनस एच लेंगे ये बन, ये और ये बन एच सी माइनस जी एफ
क्या होगा, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, एच सी माइनस जी एफ माइनस जी प्लस माइनस प्लस प्लस जी होगा, ये बंद एच एफ माइनस बी जी। ठीक है, तो ये आ गया ए बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एफ जी एच, यहाँ आ गया प्लस एफ जी एच, उसके बाद माइनस बी जी स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये याद होगा आपको, ये डिटर्मिनेंट, इसका आंसर ये होता है। उस टाइम कैसे ये होता है, इसकी जगह ऐसे क्यों लिख दिया, इसके बाद हम डिस्कस किए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स को आपको सॉल्व करने को मिलेगा, और क्वेश्चंस जो आते हैं ये इन बिटवीन में आएगा। ऐसा नहीं कि एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने देगा, ऐसा लिखा रहेगा प्रूव दैट, तो उसमें एक सेंटेंस जुड़ा रहता है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चा देखते हैं कि बिना प्रॉपर्टी का यूज किए सॉल्व कर रहे, आंसर आएगा बट मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए कि वहां लिखा रहता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें आप लोग कुछ क्वेश्चंस अपने घर में लिखकर प्रैक्टिस करें। जहां डाउट है, उनको लगता है 2-3 बार इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखने पे ये क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। देन नेक्स्ट वीडियो, इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज